Okay, so yesterday we were checking out with the watch. All right. So I just created one real life scenario. Watch is used when you have to track a particular cell and you don't want to use the go to function every now and then. All right. So you can have that particular watch. Now, for example, here we had the order data. Yes. And order value has been calculated, right? And the sum of that value means total value. Order value का मतलब ये भी है कि कितना revenue आया है. These are items which are sold, isn't it? So order इतने quantity sold sell हो चुके हैं, and then order value whatever you get is the actual revenue, right? Now this particular revenue I have taken a simple formula of sum, right? Now this number was important for me every now and then in my whole work. So what I can do is I can set a watch on this particular thing, right? So let's go ahead with the formula, and you have the watch window over here, right? Here, this particular cell, you are adding a watch, order data, M1, add, and there it is. You already have this particular order data, M1, right? So whenever you are working on some other sheets, for example, you had the expenses over here. Uh, I'm just removing it for the time being. So when you had some expenses which are going on and you wanted to see the total sales, all right, the revenue that you wanted to. So instead of going for control G and all that stuff, just open the watch window and open that particular thing. You will get that particular value, right? So you can quickly go to that particular value. Now you can also pull the data in a formula format. Means what? That this total value, or rather, I should say this is the revenue. This revenue you wanted in this sheet also. So what you can do is instead of copying that particular data, you just refer to the data. So I say is equal to, and I don't want to put any formula over there. I just want to refer. Refer to what? To this value. So is equal to M1 is what I wanted in that particular sheet. Just by referring is equal to M1, whatever data is there in that sheet will also be seen over here. It also means that suppose you had any changes. Now the value is 6 crores 91 lakhs, right? And if you had a change in this quantity, you will see there is a change in the original value as well. And here also it has got automatically updated. So this is called as remote referencing in Excel. And remote referencing you can do to some other file also. So not necessary you have to do it inside the sheet itself. You can do it some other file. But the only thing that you have to take care is that if you are referencing with some other file while saving or while copying the files, you have to copy both the files and go. Okay. So that is something that you have to take care. But you can do that. So for example, I had a new file just for a reference I'm using. I had is equal to sum of, I went in for that other file. I went to order data and I went in for the values from here. I'm just taking it randomly. I click on OK. You will see it has got referenced from some other file. So Excel is very smart in calculations with other files also. That is where the remote referencing is useful. Now this works very nicely in Office 365 setup. Local computer, if you have files, then as I said, you'll have to copy both the files and go take it along with you and re-establish the connections in the files. All right. लेकिन Office 365 में क्या होता है कि आपके पास एक ड्राइव है एंड ड्राइव के अंदर है ना, you will get all the files. They are set to with each other. So inside one drive file, you have all the files. So if you had reference, say for example, this is the main file and under them, there are some sub files. Okay. In that sub file, we can actually reference the main file, right? So whatever changes happen in the main file, you will get it in all the sub files because it is inside that structure, and that structure is put inside the cloud in a sense, the drive file.
आई होप यू नो व्हाट अ ड्राइव इज। जीमेल ड्राइव तो आपने यूज किया है। यस। तो जीमेल का जो भी ड्राइव है उसके अंदर आप जो भी फाइल्स डालते हो इट इज ऑन द क्लाउड, राइट? So today you don't have your PC, you travel to say Bangalore, and from the internet you open that drive, you will get all the files over there also. So oblivious of your geographical location, आप उस फाइल को खोल सकते हो। Yes, so that kind of a system is there in Microsoft also, which is called as SharePoint services. Okay, so most companies, those who are using Microsoft products exclusively for the entire company, they have this tree structure. तभी ये वाला जो रिमोट रेफरेंसिंग है उसका फायदा ज्यादा होता है। ऑलराइट, फाइन। बट व्हेन इट इज ऑन द लोकल कंप्यूटर, जैसे आज मैंने दो फाइल्स यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मेरे इस कंप्यूटर के ऊपर, एंड आई वांटेड टू ओपन इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। सो मुझे इसको पेन ड्राइव पे लेना पड़ेगा, एंड पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट करके उसमें खोलना पड़ेगा, एंड देन फिर से मुझे अगर लिंक्स टूट गए हैं तो फिर से एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, बिकॉज वहां पे पाथ चेंज हो गया होगा ना। यहाँ पे जैसे द ऑर्डर डेटा, ये जो फाइल है ये किसी जगह है ना, स्पेसिफिक जगह पर है, तो जगह तो चेंज हो गई। जब हम यहाँ से वहां मूव करते हैं तो जगह तो चेंज हो जाती है, राइट? एंड सो लिंक्स ऑल्सो माइट चेंज। गॉट इट? लेकिन रिमोट रेफरेंसिंग इज वेरी वेरी यूजफुल इन एक्सेल। गॉट इट? तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। गॉट इट? ओके। Now, in this revenue and expenses, I can also directly find out the profits. So, revenue minus जो भी expenses आए हैं, so this 6 crores is the profit over here. Got it? But you put this onto the watch, है ना? तो वहां पे जो भी change होगा, आप यहाँ पे watch पर से open कर सकते हो इस particular value को। Got it? तो both the ways you can use. You can directly reference the cell, जैसे अभी यहाँ पे किया, या फिर watch लगा के आप इसको देख सकते हो। So that's the use of watch. Is this clear? Okay. Now let's go to the data analysis section. Okay. Let me open the mark list first, because mark list is a very common data that you people have worked with in throughout your particular lives. Yes or no? So let's see this mark list data. Now in data analysis, what is the basic meaning of data analysis? Anyone? Anyone has an idea what data analysis is all about? Okay, one is study of data. और क्या? Okay, maintaining the data means what? So when you say study also means what? You're right. You're on the right path actually. So analysis in short would be one, collecting data, two, cleaning the data, three, organizing the data. Okay. And then four, finding out patterns inside the data. Okay. When you find patterns inside the data, then you are studying the data, right? And why patterns? Because the patterns give you some information from that data, and that information is something which is useful for your daily uh, analysis work, rather not analysis. It's important, right? So making sense of data will be done with the help of analysis. So let's see what I mean by making sense of data. You have a mark list of students. Some students, you don't know which standard these are currently. Some mark list of some students. Got it? So if you were the principal of this particular school, whichever data it is, say let's consider this is the 10th standard mark list of that school. All right, fine. You as a principal, what would you like to find out from this data? सिर्फ डेटा तो है ना, डेटा आ गया है अपने पास, yes or no, right? But as a principal, what would you like to find out? Let's list it down first. So this was the final grades of the students. क्या निकालना चाहोगे आप? Okay. Number of students passed or failed. Yes. So this is one thing. और क्या निकालोगे आप इसमें से? Pardon?
वाय ऍव्हरेज मार्क्स काढण्यात काय पॉइंट नाही, कारण हे आता एका टीचरनी शिकवलेलं नाहीच आहे इन अ सेन्स. ओके, बोर्डात गेले हा, पण ओके, ऍक्सेप्टेड. Not that it is this thing. This has been checked by the board. Papers have been checked by the board. But she says, yeah, average marks per subject. Okay. To get the performance of the teacher. Yes or no? Because average काढायचे, हिंदीचे average marks जर काढले, तर you are not having anything related to the student. You'll be having it related to the teacher. Okay. Right? Okay. Accepted. Let's say average of subject marks. But that is indicating what? Teacher performance. It's nothing related to the student, but yes, important. Okay. और क्या निकालोगे एज अ, तो अभी रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में सोचो कि आप प्रिंसिपल हो, ये आपके बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, आपके पास डेटा आ चुका है। एज अ प्रिंसिपल क्या क्या करोगे आप? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? टॉपर्स ढूंढने की कोशिश करोगे। ओके, टॉपर ऑफ द स्कूल पहले निकालोगे। यस, और क्या टॉपर्स निकालोगे? टॉपर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, maybe you wanted to felicitate them. Okay, और क्या? Divide the distinction for first class. Okay, number of students per grade category. Okay, yes. So gender wise data आप निकाल सकते हो। तो फिर जेंडर वाइज डेटा हर किसी चीज का, तो टॉपर ऑफ द सब्जेक्ट, टॉपर ऑफ द क्लास, टॉपर amongst the girls, topper amongst the boys, right? Toppers in every subject. Okay, the girls separately, boys separately, तो भी निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे फिर अभी। यस और नो? So great. This is the way you are going to look at the data before you start analysis, right? Now, the next step is that how are you going to find out all this? Got it? Right? So, कुछ चीजें आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ओके? लेकिन हर एक चीज आप फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हो। Let's try it out. So, for number of students passed or failed, क्या कर पाओगे आप? कौन सा? सिर्फ if यूज करोगे क्या? इफ से आपको क्या मिलता है? टू वैल्यूज, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेरी गुड, सो यू आर गोइंग टू यूज काउंटिफ, राइट? लेकिन काउंटिफ इस्तेमाल करके अगर आप ढूंढोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग काउंटिफ, काउंटिफ व्हाट इज द रेंज? चलो किसके ऊपर रन करोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड और फेल्ड। तो रेड, हाँ यस राइट। सो ग्रेड है, यस। कंडीशन क्या है? ओके, तो पास वाले आप निकाल रहे हो, यस। So 33 have passed. Yes. And on the same lines, अगर हम निकालना चाहते हो है तो you have to go ahead with the editing, right? And obviously this is not H3 but H2 से लेके H35 तक. Means we had to actually go ahead with the range absolute, right? So you got the result. But from this result, okay, now, okay, yeah. Do you know who has failed? You found one failure. Okay, great, fine. But who is that person? Now it is a bit difficult, right? Then if you had to manually see, अगर डेटा छोटा है तो ठीक है, बट अगर डेटा बहुत बड़ा है, सपोज 10 लाख स्टूडेंट्स है, तो उसमें आप कैसे ढूंढोगे? सो देन देर इज अ
ड्रॉबैक फॉर फंक्शंस। फंक्शन आपको आंसर्स दे सकते हैं लेकिन नॉट कंप्लीटली, गॉट इट? एंड सो यू नीड टू यूज सम मोर टूल्स, एंड दो सम मोर टूल्स आर द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा टूल्स। तो आप अगर सिंपल ऑर्गेनाइज करोगे तो भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, गॉट इट? फाइन, सो लेट्स सी व्हाट is the meaning of this, right? Now, in this data, if you arrange your data, all right, as per the grades, for example, right? तो क्या होता है देखेंगे. Now, in this we have the grade column. In Excel, आपने इसको sort किया है. You must have used some sorting technique. So, what is the sorting? Sorting means arranging the data in the ascending or the descending order, right? Ascending का मतलब है कम से ज्यादा की तरफ, एंड डिसेंडिंग माने ज्यादा से कम की तरफ. अगर अल्फाबेट्स हैं तो ascending means A to Z and descending means Z to A, right? Fine. So here this grade column, it has text. तो असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है तो ए से जेड, जेड से ए की तरफ जाना है आपको, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट है ना. 0 1 2 3 4 है ही नहीं. टेक्स्ट अगर है तो ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाएगा वो, गॉट इट? तो हम कर्सर रख दे हैं इस पर्टिकुलर कॉलम में, एंड द वेरी सिंपल थिंग इज, क्योंकि ये डेली का काम है, तो होम के अंदर आपको ये सेक्शन मिलेगा सॉर्टिंग, गॉट इट? सॉर्टिंग. तो इस सॉर्टिंग में यू हैव द फर्स्ट ए टू जेड दैट इज असेंडिंग, जेड टू ए दैट इज डिसेंडिंग. ओके. अब यहाँ पे कोई वैल्यूज ना नहीं है तो इसके वजह से आपने कोई भी यूज किया तो भी चलने जैसा है. सपोज मैंने ए टू जेड अरेंज कर दिया. ओके. अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि एफ कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए फेल वाले बंदों के पहले का पहला नाम आ गया. नाउ इट इज इजी टू फाइंड आउट दैट ईशान इज अ फेलियर, इज द फेलियर, यस और नो? सो हर बार फॉर्मूला ही यूज करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. ओके, यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, गॉट इट? ओके. नाउ वी वांटेड टू फाइंड द टॉपर ऑफ द क्लास. अब क्या करोगे, फिर से अरेंज कर सकते हो ना. इसका प्लस पॉइंट क्या है सॉर्टिंग का, कि पूरा का पूरा डेटा मूव होता है, एंड सॉर्टिंग तब अच्छी तरह से रन करेगा अगर इसके अंदर ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम्स नहीं है. ध्यान में रखिए, अगर ब्लैंक रो है, फॉर एग्जाम्पल आई पर्पसली पुट अ ब्लैंक रो ओवर हियर, यहाँ पे, और मैं कर्सर यहाँ पे रख देती हूँ, ओके, परसेंटेज के कॉलम में, या फिर ग्रेड ही कर लेंगे हम लोग फिर से असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से, राइट? आई विल जस्ट गो हेड विद सॉर्टिंग एंड सॉर्ट जेड टू ए. क्या हो रहा है देखो, ये वाला है ना, सिलेक्ट ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं इसका, इसने सिर्फ इसके अंदर देख लिया. देखो ये आगे का डेटा उसने पिक ही नहीं किया सॉर्टिंग करने के लिए, देन नो यूज ना, राइट? तो इसलिए यू शुड नेवर हैव अ ब्लैंक रो, ब्लैंक कॉलम इन एक्सेल डेटा एट ऑल, क्योंकि वो डेटा बराबर आइडेंटिफाई करता है, उस हिसाब से सॉर्टिंग करता है. इज दिस क्लियर? राइट. सो हमने कर दिया सॉर्ट. लेट्स डू फॉर परसेंटेज. अब क्या करना है, गो टू द सॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. क्यों? क्योंकि मुझे टॉपर पहले चाहिए, राइट? So as soon as you do largest to smallest, immediately you have the toppers. Gayatri is the topper of the class. Can you see? Suhani is also the topper of the class. Can you see? दोनों को भी 84% मिले हैं. So there are two toppers of the class. Got it? Now this is also a problem that if there are two toppers, जैसे ये प्रॉब्लम है ना एडमिशन के वक्त आता है, कॉलेजेस में जब एडमिशन दिया जाता है तो देर आर से वी ऑल आर हैविंग 84%. तो किसको एडमिशन पहले मिलना चाहिए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. सो सपोज हम सब जा रहे हैं एग्जाम्पल से इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए, हम सबको 84% है, तो फिर कैसे रैंकिंग लगाया जाए?
परसेंटेज 84. यस, राइट. सो जस्ट बिकॉज शी लुक्स गुड या ये कोई फेवरेट है ऐसे तो नहीं होगा. देयर हैज टू बी सम कंडीशन. सो नाउ द सेकंड कंडीशन इज मैथ फॉर इंजीनियरिंग. तो क्या करते हैं, पहले है ना परसेंटेज देखते हैं. अगर परसेंटेजेस सेम है तो सेकंड कंडीशन भी लगाया जाता है सॉर्टिंग के अंदर, राइट. दैट इज कॉल्ड एज अ देन बाय कंडीशन. सो फर्स्ट इज परसेंटेज. इफ परसेंटेज के हिसाब से प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं होता है तो देन गो बाय द सेकंड कंडीशन. इफ द सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेम फॉर ड्यू टू एनी रीजन, then it will go to the third condition, right. So that way when there is a ranking set, जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे एडमिशन का लिस्ट लग गया है, मेरिट लिस्ट लग गया है एडमिशन के लिए, इसका मतलब ये है कि इन्होंने सॉर्ट किया है डेटा को, किसको पहले एडमिशन दिया जाए, किसको सेकंड एडमिशन दिया जाए. गॉट इट. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. जैसे इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो वो मैथ्स के मार्क्स देखेंगे, लेकिन अगर आर्ट्स के लिए जा रहे हो तो शायद इंग्लिश के मार्क्स देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एडमिशंस आर गोइंग ऑन. या फिर किसी लैंग्वेज को देखेंगे या फिर ज्योग्राफी को देखेंगे. सो दैट कंडीशंस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा. इज दिस क्लियर? गॉट इट. ओके. तो अब यहाँ पे हमें टॉपर तो मिल गए. गायत्री एंड सुहानी, टॉपर ऑफ एवरी सब्जेक्ट. अब क्या करोगे? चूज द सब्जेक्ट, सिंपल, राइट. आप कर्सर उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डाल सकते हो एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. आपको मिल जाता है ओजस इज द टॉपर ऑफ हिंदी. पर आप देख रहे हो एक वक्त में एक ही कर सकते हो, आप शॉर्टिंग कर रहे हो आप, लेकिन आप कंडीशन डाल रहे हो तो एक वक्त में एक ही कंडीशन डाल सकते हो एक ही कॉलम के ऊपर. यस और नो, राइट. नाउ सपोज यू वांटेड टू गो अहेड सीइंग इट, कि जैसे अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस डालने हैं तो आप है ना एक के ऊपर एक के बाद एक कंडीशन नहीं डाल पाओगे. देन यू नीड समथिंग कॉल्ड एज द कस्टम सॉर्ट. कस्टम इस वर्ड का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट. सो लेट्स सी व्हाट इज द कस्टम सॉर्ट. तो सॉर्ट करने के लिए मुझे पहले तो कर्सर किसी टेबल के अंदर रखना है. बहुत लोग क्या करते हैं, टेबल के बाहर जाते हैं एंड देन बोलते हैं मुझे कस्टम सॉर्ट करना है. इट्स ग्रेट दैट इट इज आइडेंटिफाइंग, क्योंकि ये मेरा ऑफिस 365 है, आपके इसमें शायद रन नहीं करेगा, वो आइडेंटिफाई नहीं करता है, राइट. अगर आप कहीं बाहर कर रहे हो तो फिर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा डेटा को. इसलिए यू हैव टू कीप द कर्सर इनसाइड द टेबल. इसको सिलेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सिलेक्ट करते हो ना तो आप देखोगे आधे अधूरा सिलेक्ट हो गया कस्टम सॉर्ट, राइट. देखो आंसर्स गलत हो सकते हैं, या फिर ये पूछता है कि डू यू वांट टू एक्सटेंड द डेटा फॉर सॉर्टिंग. तो उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है आपको, राइट. So I'll just keep it onto Excel to identify it well, and I'll go ahead with the sorting, custom sort. Now I have some specific options over here. तो पहला ऑप्शन ये है कि does my data have a header? हेडर का मतलब है क्या मेरे डेटा को टाइटल्स हैं, एंड these titles are the field names. तो my data has a data header or not. अगर हम ना बोलते हैं तो सॉर्टिंग है ना कॉलम ए या बी या सी के हिसाब से होगा. अगर आप बोलते हैं कि मेरे डेटा में हेडर है तो वो बराबर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा हेडर है. एंड इसके वजह से आपको है ना टेबल को टाइटल भी नहीं देना होता है. याद है, यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू दैट अगर आपको टेबल को टाइटल डालना है तो आप कस्टम व्यू में जाओगे. कौन सा वाला? पेज लेआउट व्यू में जाओगे. कौन सा वाला? अगेन इफ यू रिमेम्बर, इट इज अंडर व्यू, कस्टम, पेज लेआउट, यहाँ पे डालोगे आप. क्योंकि दो दो अगर टाइटल्स हैं तो भी आपके एक्सेल में सॉर्टिंग करते वक्त ये मुश्किल देगा. ओके. इफ इट इज द लेटेस्ट वर्जन वो बराबर टेबल आइडेंटिफाई कर रहा है, पुराने वाले इसमें वो नहीं आइडेंटिफाई करता है. सो जब हम कहते हैं कि एक्सेल के अंदर एआई टूल्स आ गए हैं तो दीज आर सम ऑफ द एआई टूल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेबल. ऑलराइट, फाइन. ओके. तो हम कस्टम सॉर्ट यूज कर रहे हैं. यू कैन गो इनटू होम, सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट. अब ऑप्शन है माय डेटा हैज अ हेडर. अब आप डिसाइड करोगे मुझे परसेंटेज के हिसाब से सॉर्ट करना है डेटा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. कैन यू सी?
तो अब आपका ध्यान परसेंटेज की तरफ होना चाहिए। जब आप कंडीशन डालते हो तो ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन ऊपर देखोगे टेबल के अंदर पहले, गॉट इट, एंड क्लिक ऑन ओके। सो ये आ गया, अरेंजमेंट हो गया। अब क्योंकि इन दोनों को सेम परसेंटेजेस हैं, या फिर इन दोनों को सेम परसेंटेजेस हैं, इन दोनों को सेम परसेंटेजेस हैं, तो हमें किसी और कंडीशन के हिसाब से जाना पड़ेगा। यस, एंड दैट यू कैन डू नॉट फ्रॉम दिस शॉर्टकट कीज बट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टम सॉर्ट। तो ये हो गया पहला वाला। अब मुझे चाहिए सेकंड लेवल, तो मैं एक ऐड कर देती हूँ लेवल विच इज कॉल्ड देन बाय लेवल। सो पहला तो परसेंटेज है, सेकंड मेरा कंडीशन है से फॉर एग्जांपल हिंदी, राइट। लेट मी सिलेक्ट समथिंग एल्स, मराठी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, राइट। नाउ गायत्री वाज द फर्स्ट टॉपर इन द क्लास, ऑलराइट। बट जब मैं सेकंड कंडीशन डालती हूँ मराठी के ऊपर, मराठी फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एंड आई क्लिक ऑन ओके, तो अब क्या हो रहा है देखो, सुहानी बिकम्स द टॉपर ऑफ द क्लास। तो इसमें सॉर्टिंग कंप्लीट हो गया है बिकॉज ऑफ द सेकेंड कंडीशन। पहला कंडीशन परसेंटेज है, परसेंटेज सेम होने के वजह से इसके अंदर फिर वो चेक करेगा मराठी के मार्क्स किसको ज्यादा है, तो सुहानी को ज्यादा थे, तो सुहानी का रिकॉर्ड पहले आ गया। ओके, एंड 10 लाख डेटा जो अपना बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो दे आर नियरली 10 to 15 लाख स्टूडेंट्स दोस आर अपीयरिंग। उस उनके उसमें तो बहुत सारे लोगों को सिमिलर मार्क्स मिलते हैं, तब आपको बहुत सारे कंडीशंस लगाने पड़ते हैं। नंबर 1 ऑन परसेंटेज, नंबर 2 ऑन द सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, गॉट इट, राइट। आपको आपके सीट नंबर्स भी याद है, 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के सीट नंबर्स। आई एम नॉट सेइंग द नंबर, आई एम सेइंग दैट आपको सीट नंबर किसके हिसाब से दिया था? हम्म, yeah, it's a code. So for example, we all are in the same class and we had surnames which are very near to each other. Yes, तो हमारे स्कूल में रोल नंबर was according to the surnames. Yes or no? तो रोल नंबर मिलता था ए बी सी डी के हिसाब से, जो भी सरनेम्स आएंगे। सो मेरा सपोज जो भी होता सरनेम, से लेट्स से हमारा सबका सरनेम गोज फ्रॉम से पी, तो सब हम लोग एक ही रोल नंबर के हिसाब से आते हैं। लेकिन आपका एग्जाम सीट नंबर वाज नेवर लाइक दैट। एग्जाम सीट नंबर वाज अकॉर्डिंग टू द मदर्स नेम। ओके, और वो कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? जब एग्जाम सेंटर्स में ऐसे हुआ कि आई एम से देशमुख एंड आई हैव 10 people हु आर देशमुख, तो गांव वाले हो गए सबके सब एक के पीछे एक, तो कॉपिंग का भी मैटर बहुत ज्यादा था। तब उन्होंने वो चेंज कर दिया कि उनको समझा कि एक जैसे लोग, एक जैसे कम्युनिटी के लोग साथ में बैठ रहे हैं, ओके, तो कॉपिंग ज्यादा होता है। एंड देन दे रियलाइज दैट ऐसा नहीं करना है, देन दे पिक्ड अप नॉट इवन फादर्स नेम, पिक्ड अप मदर्स नेम। So now all your seat numbers are, second condition is as per the mother's name. Okay, right? So this is where the sortings are done and accordingly you are getting those particular roll numbers or seat numbers rather. Okay, so इसका practical application है, हम sorting कहते हैं तो इसका practical application है, right? Okay, fine. So let's see custom sort में हमारे पास और क्या है? Okay, you can keep on giving more levels. आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हो लेवल्स को, पूरी तरह से डिलीट करना है वो भी हो सकता है। ऐड लेवल, नया लेवल ऐड करना है, यू सिलेक्टेड, आपको टॉपर ऑफ मराठी चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके कर दिया, इस तरीके से आ गया। क्लियर, यहाँ तक सीख ठीक है? ऑलराइट, फाइन। अब है ना, सपोज मेरे पास कुछ कलर्स थे, तो सॉर्टिंग कैन ऑल्सो डू आइडेंटिफाई कलर्स, राइट। सो अगर आप कस्टम सॉर्ट में जाते हो तो हियर सपोज मैथ इज योर नंबर 1 क्राइटेरिया। अब सेल वैल्यू के बदले में सेल कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेल कलर ऑन टॉप कौन सा देना है तो आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे अभी ना ग्रीन वाले पहले चाहिए ऑन टॉप, एंड देयर इट इज। सो एक्सेल इज वेरी स्मार्ट इन आइडेंटिफाइंग कलर्स ऑल्सो, ऑलराइट। तो ये हो गए डन। अगर मैं जेंडर पे इसको रन करूं, अभी ये सिंपल है, मैं कोई भी रन कर देती हूँ यहाँ पे, शॉर्टकट से भी चलेगा। इससे क्या हो गया देखो, एनीथिंग स्पेशल दैट यू कैन सी?
if you are running on the text. नहीं, ऊपर आ गया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल द फीमेल कैटेगरीज आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो आप जब टेक्स्ट के ऊपर रन करते हो तो आप देखोगे कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कम्स टुगेदर, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर डेटा, रिवर्स मेथड से आपको सोचना है। यू वांटेड व्हाट ऑल जेंडर्स आर देयर इन योर पर्टिकुलर थिंग, तो आपके दिमाग में पहले सॉर्ट आना चाहिए, ना कि फंक्शन। गॉट इट? And that is where you are going to start working with Excel in the expert manner. Okay? तो फीचर सीख रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में जब आप डेटा के साथ काम कर रहे हो, जब आपके पास नया नया डेटा है, तो पहले आप क्या करोगे? फॉर्मूला ऑडिटिंग करोगे। सेकंड क्या करोगे? ट्रेसिंग डिपेंडेंस करोगे, है ना, माने फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर। गॉट इट? फॉर्मूलाइज देखोगे। देन यू कम टू ओके, सॉर्टिंग फिल्टरिंग करके देखो, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एंड व्हाट इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू गेट विथ सॉर्टिंग? मैं ये सवाल जब पूछती हूँ किसी को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग, तो आधे से ज्यादा उसका डिफिनेशन देते हैं। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा ए टू जेड, जेड टू ए। नो, सॉर्टिंग is used for finding the topmost values and the bottommost values. Number one, yes or no? जब आप percentage, suppose I am sorting it according to the percentage, यहाँ पे largest to smallest, तो सुहानी is the topper। लेकिन अगर आप नीचे जाओगे तो ईशान is the most bottom person, right? तो sorting की uses लिख लो। It's used to find the topmost and the bottommost values. सो जब रियल लाइफ में आपको टॉप मोस्ट या फिर बॉटम मोस्ट वैल्यूज ढूंढ के निकालना है, तो पहले सॉर्ट करो बॉस, सबसे आसान। सो फॉर कॉल सेंटर पीपल, तुम्हाला हायेस्ट कलेक्टर बघायचा आहे किंवा लिस्ट कलेक्शन ज्याचं झालंय ते बघायचंय, तर तुम्ही काय करणार आहात? सॉर्ट करणार आहात अकॉर्डिंग टू द कलेक्शन्स ऑफ दॅट डे। तो टॉपर आणि बॉटम दोन्ही सापडतात तुम्हाला। गॉट इट? सेकंड इज, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और फाइंड अ रेकॉर्ड। मीन्स व्हाट? लुक एट दिस डेटा। मुझे आर्या का रिकॉर्ड ढूंढ के निकालना है, इसमें मुझे आर्या का रिकॉर्ड ढूंढ के निकालना है। आई डोंट नो वेयर आर्या इज, राइट? लेकिन अगर मैंने इस डेटा को सॉर्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हमने असेंडिंग किया है तो ए के लिस्ट पहले मिलेगा। जब आप सॉर्ट करते हो तो एक तो रिकॉर्ड को फाइंड करना आसान है, यस और नो? राइट? सो लोकेटिंग बिकम्स इजी। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो सेकेंड यूज इसका ये है कि सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग अ रिकॉर्ड। सॉर्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, जैसे हमने जेंडर में ये किया अभी। सॉर्ट करने से आपको फीमेल रिकॉर्ड साथ में मिले और मेल रिकॉर्ड साथ में मिल गए। अ रिकॉर्ड, टू लोकेट अ रिकॉर्ड, टू ग्रुप द सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा। तो लोगों को है ना ऐसा लगता है कि सॉर्टिंग वेरी इजी एंड ये, हाँ इजी है, वो अप्लाई करना कितना आसान है। कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ कर्सर रखो एंड देन इसका कोई भी एक बिगड़ लो। बट व्हाई यू आर सपोज टू सॉर्ट इज इंपॉर्टेंट ना। यस, राइट? सो टॉप मोस्ट वैल्यू, बॉटम मोस्ट वैल्यूज, ये आ गया। अब इसमें ना और एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स एंड ऑल दैट। सो जब हम वो करेंगे तो वहां पर भी आपको सॉर्टिंग दिखाई देगा according to those icons. So what are icons and everything we are going to see later. Okay, so as and when we are doing other features also, we are going to come back to sort every now and then to check what all is available. Now let's see what we can do with the sorting of records for dates. तो मैंने आपको बोला था कि अभी हमारे पास एक
डेटा ले लीजिए कि जहां पे डेट्स हैं. यस, सो आई ट्राइड एंड पुट सम डेट्स ओवर हियर. ऑलराइट. नॉर्मली जब ऑर्डर्स आते हैं इन रियल लाइफ, वो डेट के हिसाब से ही ऑर्डर आते हैं, ठीक है. लेकिन किसी वजह से अगर आपने सॉर्ट किया है, तो फॉर एग्जाम्पल यू हैड, एंड ध्यान में रखो, व्हेन यू आर सॉर्टिंग अ डेटा, आपका डेटा पूरी तरह से मिक्स होता है. यस और नो? राइट. इसका मतलब है ये अभी डेट्स मिक्स हो गए हैं. यू डोंट हैव देम इन सीक्वेंस. जब आप डेटा पे सॉर्टिंग लगा देते हो, आप यहां से देखोगे, इफ यू हैव द डेट कॉलम, it's automatically telling you oldest to newest and newest to oldest. Can you see? So your condition of A to Z or Z to A does not apply on dates, provided आपके कॉलम के अंदर जो डेट्स है ना, वो स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट में है. राइट. अगर वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो आपको A to Z, Z to A ही दिखेगा. बट अगर वो डेट है प्रॉपरली, देन योर सॉर्टिंग हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट. सो जस्ट मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करती हूँ, तो जनवरी फरवरी के हिसाब से अभी यहाँ पे आ गए डेट्स. ओके. Sorting does not run by numbering in for dates. Okay. Oldest to newest, newest to oldest. That's it. Okay. और क्या है अपनी sorting में? कॉपी कर सकते हैं, मानी ये लेवल जो भी है इसको आप कॉपी कर सकते हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉपिंग अ पर्टिकुलर लेवल, बट दैट इज फॉर अगेन देन बाय. आप ऑर्डर इसके हिसाब से कर रहे हो, एंड देन से मे बी क्वांटिटी के हिसाब से कर रहे हो, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो इसमें अभी ये आ जाएगा. पहले तो डेट के हिसाब से ही आ रहा है. अगर सिमिलर डेट्स हैं, ध्यान में रखो, देन बाय विल बी रनिंग ओनली इफ द फर्स्ट कंडीशन इज सेम फॉर मेनी रिकॉर्ड्स. तो ही वो सेकंड की तरफ जाएगा. नहीं तो पहला वाला जो भी आपने दिया है उसी के हिसाब से वो जाएगा, आई मीन सॉर्टिंग होगा. राइट. तो अगर आपके पास रिपीटेड डेट्स है, अभी मैंने रिपीटेड डेट्स नहीं लिए हैं, ठीक है, रिपीटेड डेट्स है तो ही उसके अंदर दो रिपीटेड होंगे, तो उसके हिसाब से फिर वो क्वांटिटी के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? ऑलराइट. सो सॉर्टिंग के ये यूज है. आपको सोचना है आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको सॉर्टिंग का यूज होगा या नहीं होगा. गॉट इट? ओके. ओके. नाउ इसी के साथ है ना, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फिल्टर आल्सो. यस. नाउ दीज बोथ फीचर्स, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, बेसिकली डेटा के ऊपर है. डेटा के ये एनालिसिस टूल्स हैं. तो आपको होम के अंदर तो मिल ही रहे हैं, लेकिन ये सेम फीचर्स आपको डेटा इस पर्टिकुलर रिबन के अंदर भी मिलेंगे, विच इज सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. तो आप यहां से भी इसको रन कर सकते हो. ओके. बिकॉज इट इज अ स्पेशल डेटा एनालिसिस टूल. गॉट इट? डन. जैसे अब मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये देखोगे अब ब्लेजर कैप्स टुगेदर, वाटर टी शर्ट्स टुगेदर, स्वेट शर्ट्स टुगेदर, एंड सो होता आ गया है यहाँ पे. गॉट इट? राइट. ओके. नाउ इसमें फिल्टरिंग आता है. नाउ व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू. अगर मुझे से स्वेट शर्ट्स के कैटेगरी मिलते हैं, ओके, लेट मी टेक अप द प्रीवियस वन आल्सो, अपना ये वाला डेटा. ठीक है, मार्क लिस्ट रन करते हैं. ओके. मुझे जेंडर वाइज चाहिए था, तो मैंने सॉर्ट कर लिया. यस और नो? जो भी है मुझे मिल गया. बट मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे अननेसेसरी मेल का रिजल्ट ये भी आ रहा है, रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं. सो व्हेन यू वांटेड टू सी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स and you don't want to see the rest of the records, then you are going to do the filter. फिल्टरिंग का मतलब क्या है इन रियल लाइफ? छानना. छानना ना. तो जो जरूरी है, जैसे चाय छानते हो आप, उसके साथ पत्ती नहीं पीना चाहते हो ना, सो आप छानते हो उसको. जो इंपॉर्टेंट है वो निकालते हो, बाकी सब आप डिस्कार्ड करते हो या फिर हाइड कर देते हो. गॉट इट? सो दैट इज द एग्जैक्ट कंसेप्ट इन दिस पर्टिकुलर फिल्टरिंग ऑल्सो. फिल्टर जब आप लगाते हो, राइट, यू कैन पुट इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, सॉर्ट फिल्टर, फिल्टर. इस फिल्टर से क्या हो रहा है देखो, टॉप जो हेडर है वो आइडेंटिफाई होता है और उसको फिल्टर लग जाता है, बिकॉज दैट इज द कंडीशन. कंडीशन उसके ऊपर लगेगी. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फीमेल्स का लिस्ट चाहिए क्या, तो सिर्फ फीमेल्स का लिस्ट आ गया देखो. बाकी यहाँ पे हाइड हो गया है. एंड हाइडिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ द कलर ऑफ दैट रो. देखो,
ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है, इस पर से ही पता चलता है कि यहाँ पे फिल्टरिंग लगा हुआ है। ओके, क्योंकि कभी कभी है ना, ये हाइड कर सकते हो आप, ये जो है ना ऊपर का, आई थिंक सो यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, पर हाइडिंग हो सकता है इसका। बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि अगर इसके कलर्स ब्लू में है तो आपको समझ में आता है कि देर इज सम काइंड ऑफ फिल्टरिंग विच इज एप्लीकेबल ओवर हियर। गॉट इट? ओपन करना है तो आप देखोगे जेंडर के यहाँ पे एक फिल्टर आइकन है, राइट? इसको खोल के आप क्लियर फिल्टर कर सकते हो, यू जस्ट क्लियर द फिल्टर। ऑलराइट, अब फिल्टर के अलग अलग टाइप्स हैं। गॉट इट? तो हाउ डज इट गो? इफ इट इज अ नंबर, ओके, जैसे परसेंटेज है, तो फिल्टर के वक्त देखो नंबर फिल्टर्स भी अवेलेबल है, एंड जितने भी वैल्यूज है वो सब आपको दिखाई देते हैं। गॉट इट? मीन्स इफ आई वांटेड ऑल दोस पीपल दोज हु हैव गॉट 59 और 39%, तो ये दो ही दिखेंगे, बाकी सब हाइड हो गए। राइट? ओपन, क्लियर द फिल्टर्स, दैट्स इट। गॉट इट? अब नंबर फिल्टर्स में हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। नंबर फिल्टर्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है, देखो। एग्जैक्टली इक्वल टू से 70 अगर आप चाहते हैं तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है एग्जैक्टली 70 वाला। गॉट इट? सो यहाँ पे फिल्टर आप एग्जैक्ट 70 का भी लगा सकते हो। कैन सी? मैथ्स में हम लोग ये कर सकते हैं, आई वांटेड नंबर फिल्टर एग्जैक्टली इक्वल टू से 80 मार्क्स। ओके, अनफॉर्चुनेटली है नहीं, 98 निकालेंगे। इजंट इट? इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू माने 80 छोड़ के सब कुछ 88। अभी 88 के दो तीन है यहाँ पे, राइट? मैथ के अंडर, सॉरी टोटल में है ना, ओ ओ ओ सॉरी, मैथ को हम लोग लगा रहे हैं नंबर फिल्टर्स नॉट इक्वल टू 88, तो 88 छोड़ के सब आ गए हैं। ओके, ना कहने को तो ये इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, पर कब कौन सा यूज करना है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिटवीन यहाँ पे दो कंडीशंस देने पड़ते हैं। सपोज यू वांटेड टू फाइंड आउट दोज पीपल बिटवीन 40 एंड 80, या फिर 40 एंड 100 लिख लीजिए, चलो 40 के ऊपर वाले से 80 रखते हैं, 40 टू 80 के बीच के ही लोग आपको चाहिए। तो आप दो कंडीशंस डालोगे तब यहाँ पे 40 टू 80 का ही रेंज आ गया। कैन यू सी? कोई भी 40 से के नीचे नहीं है एंड कोई भी 80 के ऊपर नहीं है। So between is one more condition that you can put under the number filters. Okay, let me clear it out. Now there is a very interesting thing. Above average, below average, top 10. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉप 10 का मतलब है टॉप 10 आइटम्स अगर बोलते हो, जैसे अगर मुझे टॉपर 3 टॉपर्स चाहिए क्लास के, सो टॉप 3 आइटम्स मैं ले रही हूँ यहाँ पे, टॉपर्स ऑफ इन मैथ, 3 टॉपर्स इन मैथ फॉर ऑफ द क्लास। इसमें दो लोगों को सेम मार्क्स मिले हैं, एक ये है। ओके, ओपन, क्लियर फिल्टर, नंबर फिल्टर्स, टॉप 10। इसी हिसाब से आप बॉटम 10 भी निकाल सकते हो या बॉटम 3 भी निकाल सकते हो। आ गया? सो यू हैव टू डिफाइन आपको क्या चाहिए। ध्यान में रखो, सॉर्ट, फिल्टर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एक्सेल, लेकिन क्या आप डिफाइन कर पाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूजिंग सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन किस लिए यूज कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यस, ओके। ये अपने बॉटम वाला फिल्टर मैथ सब्जेक्ट पे लगाया है, मैथ्स पे लगाया है। फिजिक्स वाला एक ऊपर एक नीचे है। हाँ, क्योंकि सॉर्टेड नहीं है ना डेटा। ये फिल्टरिंग देख रहे हैं हम लोग। सॉर्टिंग इज डिफरेंट, फिल्टरिंग इज डिफरेंट। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग, राइट? तो अगर जैसे आपका क्वेरी इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है, तो जैसे टॉप मैंने 5 ले लिए, 5 लोग ले लिए, राइट? ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया, लेकिन जैसे कुछ 98 यहाँ पे ऊपर नीचे है ना, इसके अंदर आप फिर से जाके है ना सॉर्टिंग कर सकते हो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट।
इसीलिए इन्होंने ना फिल्टरिंग के अंदर दोनों दिए हैं, सॉर्टिंग भी दिया है, फिल्टरिंग भी दिया है, ताकि आप है ना इसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसी के अंदर आपको देखोगे आपकी टॉपर्स अर्चना एंड गायत्री दोनों भी मिल रहा है आपको। ऑलराइट, देयर इट इज, क्लियर फिल्टर्स, सॉर्टिंग भी क्लियर कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नंबर फिल्टर्स देख रहे हैं हम लोग, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है, अबव एवरेज वाले लोग आपको ढूंढ के निकालने हैं। तो ये है ना अबव एवरेज वाले इसने फिल्टर कर दिया, देखो कुछ कुछ रोज नहीं है इसके अंदर। क्या किया होगा इसने यहाँ पे, एनी आइडिया? अबव एवरेज का मतलब कसं डिसाइड केला? अबव एवरेज मीन्स दे आर गुड स्टूडेंट्स। इसने कैसे डिसाइड किया गुड स्टूडेंट कौन है? इट्स इन द नेम ओनली, हिंट। अबव एवरेज का मतलब क्या है? अबव एवरेज मीन्स व्हाट, कि अगर इसने अभी देखो क्या किया है, ये पूरा जो भी मैथ्स का कॉलम है ना, ओके, इसका एवरेज कितना है? 76 है। ओके, अब 76 के ऊपर वाले सब उसने आइडेंटिफाई किए कर दिए बाय द नेम ऑफ अबव एवरेज। इट हैज आइडेंटिफाइड, उसने पीछे कैलकुलेट किया कितना है एवरेज, एंड उस एवरेज के ऊपर वाले ही रिकॉर्ड्स उसने फिल्टर करके दे दिए। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। इसमें आपका है ना काम जल्दी हो जाता है, जैसे आपका कलेक्शंस होते हैं या फिर कुछ टॉपर्स हैं, अभी यहाँ पे टॉपर्स हैं, तो अबव एवरेज स्टूडेंट्स इन मैथ्स ढूंढ के निकालने हैं। ओके, so it will give you directly with the help of the filter function. Okay, got it? Open it up, there it is. मैं सिर्फ filter for this I am running each and every one. Same thing you are going to try it on the text also. इसमें बहुत सारे टेक्स्ट के फिल्टर्स भी हैं। ओके, लेकिन ऐसे ही फिल्टर्स अलग अलग इसके हैं। तो बिलो एवरेज मींस बिलो 76, इसके इसके बारे में इन दिस। एंड देन इसमें कस्टम फिल्टर नाम का एक ऑप्शन भी है, कस्टम फिल्टर, कैन यू सी? कस्टम फिल्टर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, बट ऑल दीज फीचर्स आर ऑलरेडी देयर इन द शॉर्टकट यहाँ पे। तो कस्टम मीन्स द सेम थिंग, कि आप इसमें से क्या ढूंढ रहे हो। ओके, आपको खुद को डिफाइन करना है तो कस्टम में जाओ, लेकिन दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड फॉर यू, तो यूज दिस एज फार एज पॉसिबल। ओके, एंड द लास्ट वन इज, इस टॉप 10 के अंदर है ना सिर्फ आइटम्स नहीं है, परसेंट भी है। ओके, मीन्स व्हाट, I'll run it on Marathi. It's applicable everywhere. मराठी में मुझे आई वॉन्ट टॉप 10 पीपल नहीं, टॉप 10% चाहिए। टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ओके, तो यहाँ आइटम्स के बदले में परसेंट डालती हूँ एंड आई क्लिक ऑन ओके। क्या हुआ देखो, सिर्फ 3 आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? ओके, ये फिल्टरिंग भी निकाल देती हूँ इसमें। इसमें टोटल रिकॉर्ड्स देखो कितने हैं, काउंट आएगा तो यहाँ पे 34 है। 34 का 10% कितना होता है? चलो एक्सेल सामने ही है, इज इक्वल टू 30% ऑफ 34, सॉरी, ओ आई एम सो सॉरी, 10% ऑफ 34, 3.4 डज नॉट काउंट, सो 3 स्टूडेंट्स, इसलिए उसने 3 स्टूडेंट्स ही निकाला। गॉट इट? मराठी में नंबर फिल्टर के हिसाब से टॉप 10% पीपल, ओके, 3, यहाँ पे 3 माने नंबर देख रहा है ना, 87, 3 लोगों को 87 मिला, एक को 88, एक का 89 आ गया। तो भले ही 3 लोगों को 87 मिला, इट्स द सेम थिंग ना, सेम मार्क्स मिले, इसकी वजह से उसको एक ही कंसीडर करना है। टॉप 10% ऑफ द पीपल, टॉप 10% इन मराठी।
ऑलराइट। टेक्स्ट के जो फिल्टर्स है वो बहुत आसान है, इसकी वजह से आई नॉर्मली डोंट गो अहेड विद दैट, बट यू कैन रन ऑन द टेक्स्ट ऑल्सो। यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स आपको इक्वल टू एग्जैक्टली द वर्ड, इसमें इंटरेस्टिंग एंड्स विद बिगिंस विद ऐसे आप लिख सकते हो, बिगिंस विद से ए एन, सॉरी हम फिल्टर इसके ऊपर रन कर रहे हैं ना, जेंडर के ऊपर रन कर रहे हैं, एफ से स्टार्ट होने वाले हैं। देखो हमने इसके ऊपर रन किया है, आई वांटेड टेक्स्ट फिल्टर्स बिगिन विथ एफ, गॉट इट, राइट। डज नॉट कंटेन और कंटेन्स, कंटेन्स whatever, a n a, okay, MALE, कंटेन्स MALE, आप देखो कि सबके सब आ गए, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर जहां पर भी MALE वर्ड है वो सभी आ गए, गॉट इट, राइट। सो सच काइंड ऑफ फिल्टर्स यू कैन अप्लाई ऑन टेक्स्ट ऑल्सो, पर नंबर में देखने जैसे हैं, क्योंकि नंबर में वो कैलकुलेट करके भी आपको देता है फिल्टरिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस, चलो ट्राई इट आउट ऑन योर मशीन्स। So if you wanted to remove the filtering, you can remove it by going to that particular icon and saying clear filter over here. या फिर आप जाओगे directly data के अंदर and you have the filter section which is highlighted. Can you see? If you put it off, the filtering is gone. If you put it on, the filtering will come up. Can you see?